Fine. So I welcome you all to this online seminar on importance of Swayam MOOC courses for our students, specifically BTech students. So the objective of this seminar is twofold. First, I want to solve the queries that I have been asked by many students, specifically second year and onwards students, about your BTech honors degree. What are the importance of Swayam courses for that? First thing that is important, and the other thing is we will know in general what are the importance of Swayam courses, how you are going to enroll for these, how you are going to register in that. Fine. So this is what we will be covering. Uh, so let me show you the outlines of the seminar that we will do. Firstly, we will identify how the Swayam courses are important for all of you. Then we will see what are the rules and regulations to get an honors degree in Bikaner Technical University. Then we will see uh, you, you can see. Okay, try to keep yourself mute, right? Hmm. So then we will see what is the registration process and how you are going to enrollment and how you are going to do assessments and examination, how examination process undergoes. Then we will see how to get a certificate and what are the credits for the courses. Then I will tell you a suggestive strategy how to get the credits from the Swayam courses. Okay. This would be an interactive session. This is not kind of a seminar कि मुझे ही बोलना है. Yeah, this is kind of interaction. So you can interrupt me anytime by unmuting yourself and just don't raise the hand. Just unmute yourself and you can interrupt me anytime if you want to solve your doubt anyways. Okay. And other students also listen to the questions of the people who are asking doubt. Okay. Because that may be doubt for yourself also. Okay. So I hope I am audible perfectly and you are able to see the slides also on your screen. If there is any problem, you can interrupt me. Okay. So if we are clear about the outlines and if anything is left from these outlines, you also tell me in the end. I will try to solve that also. Right. So now coming on the first thing, importance of Swayam MOOC courses. So why the Swayam courses are important? If you are doing a BTech degree, then why you require Swayam courses, right? You are already having 6 courses, 5 courses per semester. Then why you need to do extra Swayam courses or extra MOOC courses? Fine. So anyone can tell me what are the importance, or I have written something on the screen also. Maybe you can correlate them. If anyone has any thought, be interactive. आप लोग बोल सकते हैं. There is no foundation of language. There is no foundation of anything. You can tell me what are your thoughts. Okay. So let me contribute here and you can add more. So MOOC courses are actually open source courses that are available mostly online, and these courses are extra than your curriculum. Sometimes they are advanced than your curriculum. Okay. Now why Swayam courses are important? Swayam is a portal. Okay. Swayam is a portal which is governed by AICT, okay, and MHRD. So they what they have planned that people are having their आप अपने regular courses को कर रहे हो, and apart from that you may also require to have extra knowledge, advanced knowledge of the same courses and other courses which are not part of your curriculum. Okay, so this is and specifically these are not the teachers that are teaching you regular courses. Okay, sometimes when I was a student, we also felt sometimes
that every student cannot understand everything from every faculty. Okay, so you may be requiring some other faculty also for helping you out for clearing the concepts, right? So here in the Swayam portal, you get world class instructors available. They are from IITs, NITs, they are from even they have exposure of outside world, outside India. So there are different world class instructors which are giving these courses, and they give you weekly assignments. Okay, in regular courses you get assignments, and sometimes these assignments are normally linked with your syllabus. Okay, but in the cutting edge technology, देखो होता क्या है, सारा मोटिवेशन यही आके होता है. Every year we get lakhs of engineers. ओके, स्पेसिफिकली अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूं या किसी और ब्रांच की भी बात करूं, तो लैक्स ऑफ इंजीनियर्स आर graduated every year. Okay, but from a survey it has been estimated that very few of them have actual engineering knowledge. Means आप कंप्यूटर इंजीनियर बन तो गए, ठीक है, बट आफ्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग यू इवन डोंट नो हाउ टू रिमूव अ वायरस फ्रॉम योर system, or how to load an operating system in your laptop, है ना. तो ये वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है दैट पीपल आर नॉट नोन ऑफ. ओके, सो ये आपके सिलेबस में नहीं होता है ना. दिस इज द एडवांस नॉलेज दैट यू हैव टू गेट, और दिस इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज दैट यू नीड टू गेट. फाइन. सो फॉर दैट एक्स्ट्रा नॉलेज वी रिक्वायर स्वयं कोर्सेज. अब जब कोर्स हो जाएगा तो एनी कोर्स इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन. ठीक है, तो in this Swayam courses you get some proctored exams. What are proctored exams? आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है, एंड वहां पे you get an online paper. The paper is mostly objective, and you do the questions and you mark the correct option. ओके, जैसा आप लोग IIT JEE या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग दे के आए हैं, राइट? जैसा IIT भी तो इस बार ऑनलाइन था ना, सो दैट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. इजी क्रेडिट ट्रांसफर. नाउ दिस इज अ थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. कैसे? वी विल शॉर्टली कम ऑन टू दैट ऑल्सो, बट देर इज अ थिंग दैट यू आर गेटिंग. आप जो भी रेगुलर कोर्सेज कर रहे हो, इससे आपको कुछ क्रेडिट्स मिल रहे हैं, राइट? आई विल टेल यू अबाउट द नॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि आपको कितना क्रेडिट स्कोर करने हैं एंड कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट्स आपको स्कोर करने हैं, राइट? Then we have a local chapter. We have a Swayam local chapter where all the students of this institute are part of. Students and faculty members are part of this local chapter. एंड जो भी यहाँ पे एडवांस नॉलेज स्टूडेंट्स गेन करेंगे, वो यहाँ के लोकल चैप्टर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजीव यादव है ना. सो ही इज लोकल चैप्टर कोऑर्डिनेटर. maybe you can get a cross information from him. He is head of department of electronics and communication engineering. You can get any other information, जो भी तुम्हारा डाउट है या कुछ और है, you can also address him to him. Okay, so he is local chapter coordinator. वहां पे जितने भी स्टूडेंट स्वयं कोर्सेज में एनरोल्ड हैं और जो एग्जाम दे के आते हैं, उनका क्या स्कोर रहा, क्या सर्टिफिकेट रहा, that every information is available in this local chapter. Okay, this is kind of a online portal जिसमें आपका आप हम सब लोग इंक्लूडेड है, राइट? नाउ द नेक्स्ट, let's start from what you people are most interested, how to get an honors degree from Bikaner Technical University. Okay, so suppose you have started, I am taking the example of first year because that is the first phase of your engineering degree. So you have started your degree from suppose computer engineering branch. Okay, now by the end you score every year some percentage, and by the end you get some credits. Okay, every subject has a credit. Okay, suppose you are having, अभी मैं आपको credit system बताऊंगा. Then every subject you have a credit. So after your BTech, completing your BTech, you have to gain specific credits, specific number of credits, और उन credits को gain करने से आपको BTech की डिग्री मिल जाएगी.
ठीक है. So this is a normal BTech degree. Fine. Now you require honors degree. Okay. So some people may have doubt what is this honors degree about. Okay. So first thing is that आपको याद है जब आप लोग छोटे थे and when you were in earlier classes, तो आपके मार्क्स बहुत बार 9 आउट ऑफ 10 आए होंगे, 8 आउट ऑफ 10 आए होंगे एंड इनफैक्ट 10 आउट ऑफ 10 भी आए होंगे, है ना. एंड योर टीचर मस्ट हैव गिवन यू गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना, समटाइम्स स्टार और सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टराइजेशन ऑफ योर मार्क्स. ठीक है. यानी आपको आपकी मार्क्स तो मिले, यू गॉट योर 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, वॉट एवर यू गॉट इट, बट अपार्ट फ्रॉम मार्क्स यू हैव ऑल्सो रिसीव्ड एन एक्सीलेंट. Okay, so that excellent is quite analogous with this honors degree. Okay, you will be getting BTech degree if you gain some credits. Okay, so let me show you the credit system. We will discuss more than this. Now see, okay, so on your screen, are you able to see a PDF file? Yes, sir. Yes. So this is the general rules of your credit. Okay, thank you. So this is your general rule of credit. So here you can see you are going to get a BTech degree when you will have 166 credit. Okay, 166 credits you can get, and this will give you a BTech degree. Now, how you are going to get these 166 credits? Suppose in this semester you have 5 subjects of 3 credits each, means there are total 15 credits. Fine. And you have 4 practicals which are 2 credit each. It means 10 credits there. So together they became 25 credits. So suppose you are getting 25 credits per semester, means by the end of your final year, your 8th semester, you need to cover this 166 credits from your university curriculum. ओके, जो सब्जेक्ट्स की आप रोज क्लासरूम टीचिंग कर रहे हो उनका टोटल इज दिस. अगर आप किसी सब्जेक्ट में किसी वजह से या गलती से फेल हो जाते हो, यू गेट एन अटेम्प्ट टू डू दैट अगेन इन नेक्स्ट सेमेस्टर. ओके, एंड उसके थ्रू आप उन क्रेडिट्स के अंदर उस सेमेस्टर में पास नहीं हो पाए तो यू कैन पास इन दोज क्रेडिट्स इन अपकमिंग सेमेस्टर. राइट. So this is a method of credit. Now यहाँ पे एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिख रही होगी. फॉर गेटिंग बीटेक ऑनर्स डिग्री you require 166 plus 20 credits, right? Now these 20 credits you have to get from MOOC courses. Okay, so what are these MOOC courses? वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से MOOC courses और कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है. तो कितने दिख रहे हैं आपको, कितने एक्स्ट्रा क्रेडिट्स आपको लेने हैं? बीटेक विद ऑनर्स. ओके, बीटेक नॉर्मल बीटेक डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके 80% भी आ जाएंगे, 90% भी आ जाएंगे बीटेक में, बट आप कितने सब्जेक्ट्स लेके करोगे? 166 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट से करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन ऑनर्स डिग्री. फाइन. But if you do 166 credits from your regular courses and 20 credits from MOOC courses, तो उसमें क्या होगा? You will be acquiring these extra credits and you will get this honors degree. Am I clear in that? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So that is what I want to tell you about. Now let us come on to the rules. Okay. Now this is a Bikaner Technical University letter that has been given for telling you the norms about this CBCS system.
Okay, now our university has introduced this system. This is credit based system. Okay, now everything that you are going to do in this degree will give you some credit. Okay, now extra 20 credits from MOOC courses you have to get it. Okay, now these MOOC courses are available from two main portals. That is, first is NPTEL and second one is Swayam. Yes, there are two other portals also available, but they are in their initial stages right now. You will find very few courses in these. Okay, but you can explore them. uh, what is the main source of getting certification and credits is this Swayam portal. Okay, and I am going to describe this for you. I will also show you NPTEL, but that is right now not exactly useful for getting certification. Yes, this has many courses available, but certification right now is not available. NPTEL courses provide certification through Swayam portal. Okay, so ultimately our goal will be Swayam portal. Am I clear about this? Yes, sir. Now you have also to understand that how, what is the timeline to do this. Okay, तो जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, ये बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स यू कैन डिसाइड योर जर्नी. ओके, यू कैन प्लान योर जर्नी कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट. जस्ट सी दिस. पहली बात है, ऑनर्स डिग्री के लिए सिर्फ मूक्स कोर्स कंसिडर करे जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. इट मींस द एक्स्ट्रा 20 क्रेडिट्स कैन ओनली बी कैप्चर्ड फ्रॉम द मूक कोर्सेज जहां पे प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो और एग्जामिनेशन हो. आर यू एबल टू रीड दिस थिंग? प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड एडिक्वेट एग्जामिनेशन. फाइन. यानी सर्टिफिकेट आपको कोई एग्जाम देने के बाद मिलता हो, सिर्फ कोर्स करने से सर्टिफिकेट इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस. फाइन. नाउ सी दिस. प्रेफरेबली है ना, प्रेफरेबली क्या है, 50% कोर्सेज आप अपनी ब्रांच से रिलेटेड लीजिए एंड 50% रिमेनिंग जो कोर्सेज है यानी 10 क्रेडिट्स जो है वो आप किससे कवर करिए, अपने ब्रांच के सब्जेक्ट से कवर करिए. एंड रिमेनिंग 10 क्रेडिट्स जो है वो आप दूसरे दूसरे ब्रांच के सब्जेक्ट्स या फिर जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आप उससे कवर कर सकते हैं. ठीक है, बट दिस इज प्रेफरेबल. ओके, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन. फाइन. तो आप चाहे तो अपने क्रेडिट्स जो है वो अपनी ब्रांच से ही पूरा कर सकते हैं इफ यू लाइक. बट क्योंकि आपको एक ऑलराउंड इंजीनियर बनना है, सिर्फ अपनी फील्ड का इंजीनियर नहीं बनना है, सो दैट इज आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू एटलीस्ट 20-25% यानी कम से कम 2-3 कोर्स आप दूसरी ब्रांचेस के भी करिए. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, वो भी हमारा एक पार्ट है ना. सो अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट मैक्सिमम कोर्सेज अप टू 5 क्रेडिट्स इन अ सेमेस्टर. अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ये आपको याद रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना है. आप पहुंच गए बिना कोई मूक कोर्स करे थर्ड ईयर के अंदर. ठीक है, थर्ड ईयर में भी आप पहुंच गए 6 सेमेस्टर में, है ना, अभी तक आपने एक भी नहीं लिया, है ना. नाउ यू हैव ओनली 3 सेमेस्टर्स लेफ्ट. 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर एंड 8 सेमेस्टर. हर के अंदर आप कितने ले सकते हो, मैक्सिमम 5 क्रेडिट्स ले सकते हो. तो कितने क्रेडिट्स अचीव कर पाओगे आप मैक्सिमम? 15 क्रेडिट्स अचीव कर पाओगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? so that is why you have to plan your credit journey earlier. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बीटेक डिग्री नहीं मिलेगी आप ये नहीं करोगे तो, बट ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट अ स्पेशल वर्ड और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक टू बी prefixed with your degree, that is called honors. Okay, then it is a mandatory case where you have to earn 20 credits. Okay, and 20 क्रेडिट्स मींस 5 क्रेडिट्स आप मैक्सिमम एक सेमेस्टर में ले सकते हो, यानी एटलीस्ट 4 सेमेस्टर्स के अंदर तो आपको वो कोर्सेज से आपको कुछ ना कुछ अचीव करना होगा. ठीक है, और क्योंकि हम ये मानते हैं कि मूक कोर्सेज आर एडवांस्ड कोर्सेज देन आर डेली कोर्सेज, तो आपको एटलीस्ट 6 सेमेस्टर्स का एक स्लॉट रखना होगा जिसमें आप 2 सेमेस्टर ट्रायल्स के लिए भी रख सकते हो कि किसी सेमेस्टर में हो सकता है हम लोग अचीव नहीं कर पाए, तो 2 सेमेस्टर किसी में हम बीमार हो गए, किसी के अंदर किसी वजह से
हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है, किसी सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स थोड़े हार्ड लगे हमें, तो हमने वो नहीं किया। तो ऐसे आपको 2 सेमेस्टर्स का मार्जिन रखना होगा। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम, कब, अब जो इतनी बात मैंने बताई उससे कोई बता सकता है कि बेस्ट टाइम क्या है इसको स्टार्ट करने के लिए इन कोर्सेज Third को? semester. Second semester. देखो, Second semester. सेकेंड सेमेस्टर एंड ऑनवर्ड्स, है ना, सेकेंड सेमेस्टर एंड ऑनवर्ड्स तो आपको स्टार्ट करना ही चाहिए, है ना, बिकॉज आपको हो सकता है एक सेमेस्टर लगे ये समझने में कि इन कोर्सेज को किस तरह से करना है, ठीक है, ऑल्दो अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से करना है, ठीक है, स्टिल यू मे रिक्वायर 1 सेमेस्टर एटलीस्ट, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी नए नए आए हो, है ना, इससे पहले आप बोर्ड्स में थे, है ना, बोर्ड्स में थे मतलब कोई सेंट्रल बोर्ड में होगा, कोई स्टेट बोर्ड्स में होगा, इस तरह से आपकी एजुकेशन थी, ठीक है। नाउ दैट इज अ डिफरेंट टेक्निक, है ना, वहां पे एग्जामिनेशंस की डिफरेंट टेक्निक होती है, वहां पे क्लासेस डिफरेंट तरीके से होती है, एंड हायर एजुकेशन अलग तरीके से होती है, ठीक है ना। सो नाउ एक सेमेस्टर का टाइम आप लो पहले इस सिस्टम से इन्वॉल्व होने में, है ना। नाउ नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड यानी सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड, अब आप टारगेट करो कि आपको स्वयं कोर्सेज किस तरह से करने हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी एक बात हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर इज अ गुड सेमेस्टर, है ना, टू स्टार्ट विथ, ओके। नाउ आइडियल सिचुएशन तो ये है, बट कुछ स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन किए हैं दे आर फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड सम आर फ्रॉम थर्ड ईयर ऑल्सो, है ना। नाउ थर्ड ईयर के अंदर अभी फिफ्थ सेमेस्टर खत्म हो रहा है ना, सो दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, है ना, बिकॉज आपके टाइम में ये नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आया था, तो मे बी यू माइट बी गिवन सम रिलैक्सेशन और वॉट एवर मे बी द केस, जो आपको फाइनल ईयर पे पहुंचने पे पता पड़ेगा, है ना। सो यू ट्राई टू टेक मोर देन 5 क्रेडिट्स इन अ सेमेस्टर, और हो सकता है कि आपको बाय द एंड कंसिडर कर लिया जाए बिकॉज द नोटिफिकेशन केम इनटू in 2020 only, okay, so this came in 2020 only, so it means 2020 से पहले के एडमिशंस पे कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है, ठीक है, but those student you are which are who are getting admission in 2021 and 2022, okay, so who are in right now first year and second year, now you start first year people start in second semester and second year people start at least after the third semester, okay, so आपको आराम से 5 सेमेस्टर्स मिलेंगे टू कंप्लीट दिस, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट वो कैसे करना है, जैसे ही आपको ये अगर अपना कोई कोर्स रजिस्टर करते हैं, सो ये आपके 3 गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना है ना। हर डिपार्टमेंट में यू विल गेट अ मूक कोऑर्डिनेटर, every department. If you are in CS, you will have one faculty who is coordinating this MOOC course, and if you are from electronics department, there will be another faculty. आप AI से हैं या आप किसी और ब्रांच से हैं, मैकेनिकल से हैं, so whatever the branch you have to contact either your HOD, okay, or your MOOC course coordinator, okay, this will be a faculty who will be coordinating this. आपको उनके पास में अपना कोर्स रजिस्टर कराना है, आप पोर्टल पे कराना है वो तो मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है, ये आपको मैं मैनुअल प्रोसीजर बता रहा हूं जो आपको इंफॉर्मेशन के लिए आपको राइटिंग के अंदर अपनी एप्लीकेशन देनी है कि आई एम चूजिंग दिस कोर्सेज फॉर दिस सेमेस्टर जिनको मैं एग्जामिनेशन के लिए अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, राइट। देन आप जब आपका जब पूरा हो जाता है कंप्लीशन 20 क्रेडिट्स, ठीक है, तो आप सारे सर्टिफिकेट हैं वो जितने भी आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे उनको आप सबमिट कर देंगे, ठीक है, 8 सेमेस्टर के आसपास, 8 सेमेस्टर का जब असेसमेंट हो रहा होगा तब आप अपने सारे क्रेडिट्स कंबाइन करके और आप वहां पे सबमिट कर देंगे कि ये मेरे कोर्सेज है, इससे 20 क्रेडिट्स होते हैं, एंड फिर आपका जो भी फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसके अंदर जो भी स्कोर आएगा उसमें आपके स्वयं कोर्सेज भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. Okay, so we are going good, right? Anchita has raised her hand. Yes, Anchita. Anchita, you can unmute yourself and let me know what is your doubt. Okay, is all the courses in Swayam are eligible? Okay, वो अभी मैं बताता हूँ आपको, है ना, अभी हम लोग करेंगे ये डिस्कस, है ना।
Diksha, yes. Sir, can we get more than 5 credits in a semester? In which year you are? First year, sir. नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए आई वांट टू से कि यू हैव इनफ सेमेस्टर्स, सो आई डोंट थिंक कि आपके लिए अभी कंसीडर होगा, है ना. सो बिकॉज गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट मूव कोर्सेज अप टू 5 क्रेडिट्स इन अ सेमेस्टर. ओके. और इससे ज्यादा का आप जस्टिफाई कर भी नहीं पाओगे, है ना. 5 क्रेडिट्स में 2 कोर्स करने पड़ेंगे. अभी मैं दिखाता हूँ क्रेडिट्स कैसे होते हैं, है ना. फिर उसके बाद में देखते हैं, सॉल्व नहीं होता है डाउट तो मुझे फिर से बताना. ओके. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बताओ. सर जब हम कोर्स अप्लाई करते हैं स्वयं में कोई भी, तो उसके एक सर पर्टिकुलर खुद कोर्स का क्रेडिट होता है, जैसे किसी में 12 होता है, किसी में यस. 5, 3. तो सर उसमें हम क्रेडिट्स क्रेडिट मिलते जो हैं है, या फिर सुनो, सॉरी. क्रेडिट जो है वो 12 और ये नहीं है ना. अभी मैं दिखाता हूँ क्रेडिट्स कहाँ पे है ना. मैं लेट मी गो टू स्वयं पोर्टल एंड शो यू. ओके. अभी मैं सब डेमो दूंगा तुम्हारे को, है ना. देन और टेल मी सर योर डाउट. सर कैन यू गिव सम टिप्स फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हियर? हाँ, बिल्कुल अभी करते हैं कोशिश, है ना. उसके लिए भी करते हैं. और आप लोग एक एप्लीकेशन भी सबमिट करना, है ना. फाइनल ईयर स्टूडेंट भी सबमिट करना कि आप लोग ज्यादा क्रेडिट्स लेके कुछ कर सकते हैं या आपके लिए क्रेडिट कर सकते हैं. बिकॉज फाइनल ईयर का एडमिशन जो है 2020 से पहले हो चुका था, तो देयर वुड बी अ रिलैक्सेशन, है ना. कुछ होना चाहिए. बट वी ट्राई होप टू सर. सबमिट ट्राई टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू स्वयं कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजीव यादव, है ना. कि हम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं एंड वी वुड आल्सो रिक्वायर दिस ऑनर्स डिग्री. तो क्या ये हम पे एप्लीकेबल है, या तो हो सकता है आप पे एप्लीकेबल नहीं हो. ठीक है. एंड इफ इट इज एप्लीकेबल देन व्हाट इज द मेथड, है ना. बट आप लोग स्वयं कोर्सेज ज्वाइन करो अभी, है ना, बिकॉज एनरोलमेंट्स आर ओपन. यस सर. ओके. ठीक थैंक है. यू सर. अभी, हाँ अभी बताता हूँ मैं, और है ना. नाउ लेट अस कम टू द स्वयं पोर्टल. अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्वयं पोर्टल की. ठीक है. ये दो मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, आप लोग ये एड्रेसेस नोट कर सकते हो, है ना. स्वयं, आप स्वयं लिखोगे गूगल पे, यू विल गेट दिस लिंक. ओके. फर्स्ट यही आएगा. एनपीटेल लिखोगे तो भी यही आएगा. दीज आर वेरी फेमस वेबसाइट्स. सो और अगर किसी को नोट करना है, यू मे नोट दिस एड्रेसेस. ओके. सो स्वयं को हम जब क्लिक करते हैं, यू कम ऑन दिस स्वयं पोर्टल. ओके. यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी. ठीक है. सो दिस इज अ स्वयं पोर्टल, है ना. ये दिख रहा है आप लोगों को. Yes, sir. ओके. तो यू में, है ना, यू में नोट डाउन दिस एड्रेस. ये एड्रेस है इसका, है ना. एंड दिस इज अ प्लेस वेयर यू नीड टू साइन इन और रजिस्टर. ओके. स्वयं पोर्टल आप देख लो, ये इस तरह से है ना. राइट. नाउ ये स्वयं पोर्टल क्यों बनाया, है ना. तो अबाउट स्वयं के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, तो स्वयं पोर्टल की एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्यों हुई, है ना. हो क्या रहा था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सम पॉइंट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन एनवायरनमेंट इन अ डिग्री कॉलेज, जो मतलब प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एंड एनआईटीज एंड आईआईटीज है ना. तो आप कुछ 4-5 लेवल आप बना सकते हो कॉलेजेस का, राइट. सो उन कॉलेजेस के अंदर सब में पढ़ाई का लेवल अलग अलग है ना. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एक नॉर्मल कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको आईआईटी का जो प्रोफेसर है उससे भी कुछ ट्रेनिंग मिल सके. ठीक है. तो देयर इज अ टेक्निक जहां पे एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, तीन चीजों का टारगेट किया. क्या टारगेट किया? एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी, है ना, क्वालिटी, है ना. सो एक्सेस क्या, कि आपको भी एडवांस कंटेंट मिल सके, है ना. जिसके पास भी, अगर कोई बीटेक डिग्री कर ही नहीं रहा है लेकिन स्टिल उसे कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेनी है, तो उसने बीटेक की डिग्री नहीं करी, बट कांट ही डू द कोर्सेज? यस, बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि आप कुछ भी एजुकेशन के अंदर कुछ भी आप सीख सकते हो. ठीक है. तो हमारी जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसीज है, वो ये कहती है कि यू नीड टू गिव एक्सेस एवरीवन, एवरी स्टूडेंट को आपको सब कुछ एक्सेस देना होता है, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिल सके और सबको क्वालिटी रिसोर्सेज मिल सके. ठीक है. तो इसके लिए स्वयं पोर्टल की स्टार्टिंग हुई. ठीक है. आप लोग अभी कभी फ्री हो तो यू जस्ट लिसन टू अबाउट द कोऑर्डिनेटर फ्रॉम स्वयं, है ना. सो वो आपको बताएंगे कि क्या है. ठीक है. ये स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे एमएचआरडी पहले बोलते थे, अभी उसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसी के थ्रू ये पोर्टल है. एंड इट इज
है ना, इट इज एफिलेटेड बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है, एंड एआईसीटी। तो आपकी जो डिग्री है एक्चुअली इट इज एआईसीटी वैलिडेटेड है। अभी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो सब किस में आते हैं, एआईसीटी के अंडर आते हैं, एंड इसके लिए एआईसीटी में पूरा वैलिडेशन है, ठीक है। नाउ जब भी आप इस पोर्टल पे जाएंगे, या आप इसको ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, इसकी ऐप भी अवेलेबल है, तो उस ऐप में आप जाएंगे, आप साइन इन करेंगे, ठीक है। साइन इन के अंदर यू गेट दीज ऑप्शंस, राइट, यू कैन मेक योर ओन लॉगिन, ठीक है, आप अपना खुद का यूजर नेम बना सकते हैं। बट अभी आपको क्या करना है, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस फ्रॉम क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाकर के आपका जो इंस्टीट्यूशनल आईडी, ऑल ऑफ यू हैव योर आईडीज, all of you have your college email IDs @gwca.ac.in, this kind of Yes, ID, sir. okay, so you might be having this kind of ID, आपको इससे जाके लॉगिन करना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, सिंस आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन इनटू दिस, सो इसलिए मेरे से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, बट अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप कौन से ईयर में हो, कौन से कॉलेज में हो, एंड वॉट एवर द थिंग इज दैट, और आप खुद को एज अ स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर कर लो, ठीक है। अब मैं कॉलेज आईडी से क्यों रजिस्टर करने को कह रहा हूँ आपको, ताकि जो मैंने एक बात बताई थी आपको, स्वयं लोकल चैप्टर बताया था कुछ अभी थोड़ी देर पहले, स्वयं लोकल चैप्टर की मैंने आपसे कुछ बात करी थी, ये लोकल चैप्टर की, ताकि आप इसके पार्ट बन जाओ, ठीक है। तो जितने भी लोग इस डोमेन से एंटर करेंगे तो वो लोग क्या हो जाएगा, तुम्हारी ऑटोमेटिक तुम्हारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉलेज को मिलने लग जाएगी, ठीक है। नाउ सी हाउ टू एक्सप्लोर कोर्सेस, यू कैन एक्चुअली सी हियर देयर आर सम कैटेगरीज। अगर आप जनरली कोई सा भी कोर्स करना चाहते हो, आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। आपको जो एक गाइडलाइन बताई गई है वो है 50-50%, ओके, 50% आप अपनी डोमेन में करो, 50% आप दूसरे डोमेन में करो, ठीक है। बट इट इज अप टू यू, आपको जो कोर्सेज अच्छे लगे वो आप कर सकते हो, है ना। जनरल टेंडेंसी ये रखनी चाहिए कि ब्रांच के कोर्स करने से ये फायदा होता है, वो सर्टिफिकेशन आपको प्लेसमेंट वगैरह में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। नाउ सी, जब मैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूँ, आई गॉन टू कोर्स कैटलॉग, उसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नाउ यू गेट ऑल काइंड ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस हियर, दिख रहा है आपको, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो यहाँ पे कंबाइंड है, मैकेनिकल यहाँ पे कंबाइंड है, आईओटी और एआई है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, है ना। एआई का तो सारे कोर्सेज यही मिलेंगे आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। जो आईओटी ब्रांच है, आईओटी ब्रांच के लिए आपको कुछ कोर्सेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेंगे और कुछ आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेंगे, ठीक है। मैकेनिकल का अलग सेक्शन है, तो जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल से हैं उनके लिए स्पेसिफिकली अलग सेक्शन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल यही ब्रांचेस है, बाकी आप लोग दूसरी ब्रांचेस के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इनटू इट, ठीक है। और ये एक कोर्सेज है मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, इनको आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें आपको इन सब का एक इंटरसेक्शन मिलेगा, यानी वो कोर्सेज मिलेंगे जिसमें इसकी भी नॉलेज होती है, इसकी भी नॉलेज होती है, इसकी भी नॉलेज होती है, ठीक है। अभी फिलहाल आई होप मोस्टली स्टूडेंट्स कंप्यूटर के होंगे, तो मैं उसी को एक बार एक्सप्लोर कराता हूँ, तो मैं किसी को डाउट हो तो स्पेसिफिकली मेरे से दूसरी ब्रांच के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। नाउ सी, जैसे हमने इंजीनियरिंग पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे किया, यहाँ पे दो कैटेगरी आ गई, एक तो जिनका एनरोलमेंट ओपन है और जिनका एनरोलमेंट क्लोज हो गया है, ठीक है। तो क्लोज हो गया है वो कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ कोर्सेज हैं जिनका एनरोलमेंट क्लोज हो गया है, और ये अभी वापस ये स्टार्ट हुए थे 2021 में और 28 फरवरी 21 में बंद हो गए, ठीक है। तो ये तो काफी पुराने कोर्सेज हैं, ठीक है, ये पिछले साल के कोर्सेज हैं। अभी हमें जो टारगेट करने हैं वो है एनरोलमेंट ओपन कोर्सेज के लिए, ठीक है। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यहाँ पे कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है ना, तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी अगर मैं बताऊं, है ना, चलो पहले स्ट्रैटेजी नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं कि ये कोर्सेज को किस तरह से देखना है ना। नाउ आई एम कमिंग टू दिस इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सपोज दिस इज द कोर्स, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये 12 वीक कोर्स है, दिख रहा है 12 वीक का कोर्स है, यानी ये 12 वीक तक चलेगा, यानी आज आप जब भी स्टार्ट होगा, ये 24 जनवरी से स्टार्ट होगा, 24 जनवरी से लेकर के इसका एग्जाम की डेट भी दी हुई है कि 24 अप्रैल को इसका एग्जाम होगा,
एंड 31 जनवरी तक आप लास्ट इसमें एनरोल कर सकते हो। ये दिख रहा है आपको? नाउ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। नाउ इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखना, किस तरह से कोर्स को रजिस्टर करना है। ओके ओके, नाउ ये कोर्स का पेज खुला है एंड दिस इज अ प्रीव्यू पेज। यू कैन सी हियर लर्नर्स एनरोल्ड अभी तक 19,992 पीपल हैज एनरोल्ड। कैन यू अंडरस्टैंड कितना बड़ा नंबर है ना? सो इट मींस हाउ मेनी पीपल टेक दीज कोर्सेज। ओके, सो व्हाई डोंट वी, है ना? सो यही है। अब देखो कौन है, प्रोफेसर मौसम है and he is from IIT Delhi, so he is an professor from IIT Delhi। आप इनके बारे में और भी देखना चाहते हैं तो ये आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं that he is an associate professor and computer department से है and he is from IIT Delhi। इन्होंने कहाँ से क्या क्या किया है that you can understand। okay, now दिस इज कोर्स लेआउट। वीक बाय वीक इस कोर्स के अंदर क्या क्या बताया जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द बुक्स एंड रेफरेंसेस दे आर गोइंग टू फॉलो, ये आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। नाउ आपको जो स्पेशली ध्यान रखना है वो ये राइट साइड में लिखा है जो सी द समरी। नाउ ये ड्यूरेशन हो गया 12 वीक्स, कब स्टार्ट होगा एंड होगा, और जो स्पेसिफिकली याद रखना है वो याद रखना है इसकी एग्जाम डेट क्या है, कितनी तारीख को इसका एग्जाम होगा, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस क्रेडिट पॉइंट्स। दिख रहा है आप लोगों को सबको ये क्रेडिट पॉइंट्स दिखाई दे रहा है? क्रेडिट पॉइंट इज दिस एंड लेवल इज अंडर ग्रेजुएट। ओके, तो आप लोग अभी कौन सा कोर्स कर रहे हो? अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही कर रहे हो, ठीक है। एंड यू कैन सी इसके क्रेडिट पॉइंट कितने, 3 है ना। तो इस कोर्स को अगर आप इस सेमेस्टर में क्लियर कर लेते हो पार्डन, इस कोर्स को आप इस सेमेस्टर में क्लियर कर लेते हो तो यू आर गोइंग टू 3 क्रेडिट्स। ओके, सो आउट ऑफ 20 आपके कितने आ जाएंगे? 3। यू गॉट माय पॉइंट? कहां से चेक करना है आपको कितने क्रेडिट हो रहे हैं हर कोर्स के, ठीक है। इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। ओके, बोल सकते हो आप लोग अनम्यूट करके, है ना। डोंट आस्क परमिशन, यू कैन, है ना, यू कैन आस्क। आप वन बाय वन पूछ सकते हो, डोंट रेज योर हैंड, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो 50% जो क्रेडिट जो करने ना हमको कोर्स दोनों, तो उसके अंदर 50% का मतलब क्रेडिट है, मतलब 10 क्रेडिट खुद के सब्जेक्ट में और 10 क्रेडिट दूसरे सब्जेक्ट में। हाँ, आइडियली क्रेडिट से ही मतलब है ना। तो ऐसा नहीं है कि 10 का 11 हो जाएगा या 12 हो जाएगा तो कोई आपको कुछ करेगा, है ना। सो इट इज काइंड ऑफ एक प्रेफरेबल सिचुएशन दी है, आइडियल सिचुएशन दी है कि आप 50% अपनी ब्रांच की नॉलेज लो, 50% आप अदर नॉलेज लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, यहाँ पे आपको कैटेगरी नजर आ रही है ना। एआई और सीएस की ब्रांच जो है जिनकी, उनके लिए सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सर वाले स्टूडेंट के लिए अदर कोर्स हो गया। हाँ बोलो। सर अगर ये सिर्फ प्लेसमेंट के लिए चाहिए, अगर किसी को हायर स्टडीज के लिए जाना है तो फिर ये काम आएगा क्या? बेटा हायर स्टडीज के लिए तो डेफिनेटली काम आएगा, है ना। प्लेसमेंट के लिए मैं मान सकता हूँ कि एक बार आपकी अगर दूसरी स्किल्स अच्छी हैं, यू मे नॉट रिक्वायर दी सर्टिफिकेशन, क्योंकि प्लेसमेंट में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मांगी जाती है ना। आपसे एग्जामिनेशन इस तरह का होता है कि आपसे वो लोग आपके सामने बैठ के प्रोग्राम बनवाएंगे या आपके सामने बैठ के आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ठीक है। बट इफ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज, वहां पे ही सब्जेक्ट्स के एडवांस वर्जन होंगे, तो इट इज बेटर यू डू दी सब्जेक्ट्स, एडवांस सब्जेक्ट्स जिसमें भी आप हायर स्टडी सोच रहे हो। इफ यू आर थिंकिंग हायर स्टडी इन टेक्निकल, यानी बीटेक के बाद में आप एमटेक की सोच रहे हो, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप बीटेक के बाद में एमबीए या फिर इस तरह से कोई दूसरी डायरेक्शन की सोच रहे हो, ठीक है, देन आई में से कि इधर दूसरे कोर्सेज भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा,
उन कोर्सेज को आप कर सकते हो। आपको टेक्निकल कोर्सेज नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट ऑनर्स डिग्री चाहिए तो 20 क्रेडिट्स तो लेने होंगे। सो हाँ सर, हमें ये क्रेडिट्स किस परसेंटेज के हिसाब से मिलती है, मतलब मार्क्स के हिसाब से? मार्क्स कहाँ लेने हैं ये कह रही सर हो? मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट्स मिलती हैं? नहीं, ये कोर्स को क्लियर करते हैं तो क्रेडिट मिलता है। अभी सर बताता हूँ सिर्फ मैं कैसे। क्लियरेंस है? हाँ, क्लियरेंस है। देखो ये नीचे नॉर्म्स लिखे हैं, है ना, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। यस सर। द कोर्स इज फ्री टू एनरोल। आपको पहली बात तो सब लोग ये चीज ध्यान रख लो, इस कोर्स को ये स्वयं पोर्टल पे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, असाइनमेंट करने के लिए कोई आपसे फीस नहीं लेगा, ठीक है। द फीस इज ओनली फॉर द सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ओके। और वो फीस कितनी है? 1000 रुपीज है, ठीक है। वो 1000 रुपीज आपको इस पोर्टल पे ऑनलाइन पे करने होते हैं, ठीक है। जनरली अभी फिलहाल वो स्कीम अभी कॉलेज में फंड अवेलेबल नहीं है, जो टेक्ट्यूब एक स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। उसमें क्या होता था, स्टूडेंट्स को ये 1000 रुपीज अगर वो सर्टिफिकेट अचीव कर लेते थे तो उनको रियम्बर्स हो जाते थे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जब हायर क्लासेस में आओगे और जब आप लोग अपने स्वयं कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स लाओगे तो उस तरह की कोई ना कोई दूसरी चल रही होगी जिसमें स्टूडेंट्स को ये जो फीस है ये रियम्बर्स हो जाएगी अगर आप सर्टिफिकेट अचीव कर लेते हो तो। सर्टिफिकेट अचीव करने के लिए ये है क्राइटेरिया, दिस इज द क्राइटेरिया अचीवमेंट। कैसे? 25% तो आपको किसका काउंट होता है? आपके असाइनमेंट्स का काउंट होता है 25%। और टोटल असाइनमेंट कितने होंगे? 12। और 12 में से कौन से देखेंगे? टॉप 8, ठीक है। और उन टॉप 8 का जितना भी मार्क्स आएगा वो टोटल वेटेज उसका 25% काम आएगा, ठीक है। और 75% जो है वो किसका होगा? एक एंड में आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम के अंदर आपका जो स्कोर आएगा उसका 75% आपका इंक्लूड होगा। यानी जैसे आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन में इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम होता है, तो ये तो आप पूरा 12 वीक जो आपके पास में असाइनमेंट्स आते रहेंगे। अभी दिखाता हूँ मैं कोर्स कैसे चलता है, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे जैसे फाइनल स्कोर आपका कैसे बनेगा, एक तो असाइनमेंट का स्कोर प्लस एग्जामिनेशन का स्कोर, ये आउट ऑफ 100 बनेगा। ये आउट ऑफ 100 आपका क्या होना चाहिए? 40 मिनिमम होना चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर आपके 30 मार्क्स मिनिमम नहीं आए 75 में से, यानी इसमें जो एग्जाम है फाइनल उसमें से 30 मार्क्स मिनिमम नहीं आए, या फिर असाइनमेंट के अंदर मिनिमम 10 मार्क्स नहीं आए, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपके 40 मार्क्स आ भी गए तब भी, यानी आपको इंडिविजुअली फाइनल एग्जाम में भी पास होना है और असाइनमेंट के अंदर भी आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाने हैं। ये दोनों काम आपको करने हैं। ये दोनों काम अगर आप कर लोगे और आपके दोनों मिलाकर के 40 मार्क्स या उससे ज्यादा होंगे तो आपको जो क्रेडिट्स, जितने भी क्रेडिट्स की बात है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे ये एक मैं तुम्हारे को मेरा सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, इस तरह का सर्टिफिकेट हमको मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ क्रेडिट्स रिकमेंडेड बाय एनपीटेल, कितना लिखा है? 2 क्रेडिट्स, है ना। तो ये कोर्स है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी, है ना। नाउ इसके अंदर आपको ये परसेंटेज दिख रही है, ओवरऑल 93% है। असाइनमेंट्स जो करे हैं उसमें 25 आउट ऑफ 25 है। अब ये एक और कंडीशन है, जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उनमें एक प्रोग्रामिंग एग्जाम भी होता है, वो घर बैठे होता है, दैट इज कॉल्ड अनप्रॉक्टर्ड एग्जाम, है ना। जो दूसरे कोर्सेज है जिनमें प्रोग्रामिंग नहीं होती है वहां पे ये एग्जाम नहीं होता है। यानी ये जो 40, 50 और 25, जो 75 है ना एग्जाम वाला रेशो, उसमें 25 का एक प्रोग्रामिंग एग्जाम भी होता है, जो घर पे बैठ के ऑनलाइन आपको प्रोग्राम लिखना होता है। 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें 2 या 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आते हैं, उन प्रोग्राम्स को आपको बनाना होता है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स में होता है। जो जनरल दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, यानी अगर आप कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करो या इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी सब्जेक्ट की बात करो, वहां पे ये एग्जाम नहीं होता है। उन्हीं सब्जेक्ट्स में होता है जिनमें प्रोग्रामिंग होती है, फाइन। और ये वो प्रॉक्टर्ड एग्जाम है जो आपको एक सेंटर पे जाके देना होता है।
वहां पे आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ये 50 मार्क्स का था, उसमें से ये ऑप्टेन मार्क्स है। तो ये सारे चीजें टोटल मिला करके आपके ये हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया इतने कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठे थे, ठीक है। एंड ये आपका टॉपर अगर आप होते हो किसी कोर्स के अंदर 1%, यानी ऑल इंडिया रैंक इससे पता पड़ता है आपका। जैसे ये यहाँ पे रैंक हो रहा है 316 टोटल लोग बैठे थे, ठीक है, एंड उसमें से आप 1% में हो, तो 316 का 1% कितना हुआ, 3 लोग, टॉप 3, है ना। तो यानी ये जो सर्टिफिकेट है, ये आपको टॉपर वाला जो बैज है, ये आपको कब मिलता है, जब आप इस कोर्स में टॉप करते हो, ठीक है। टॉप 5% तक मिलता है, अगर 5% तक होते हो तो आपको इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक मेडल मिल रहा है ना, यहाँ पे ये गोल्ड मेडल है ना। यहाँ पे 3 तरह के मेडल मिलते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो गोल्ड मेडल है क्योंकि 90% से ज्यादा है, इसलिए गोल्ड मेडल है। एंड रिलेटिवली जैसे शायद 75 तक सिल्वर मेडल होता है, और उससे नीचे होता है वो ब्रॉन्ज मेडल होता है, राइट। ये कितने वीक का कोर्स था, 8 वीक का कोर्स था, ठीक है। आईआईटी कानपुर इसको रन कर रहा था, देखो आपको आईआईटी कानपुर का सर्टिफिकेट मिल रहा है ना। सो 8 वीक का कोर्स था, ये 8 वीक का कोर्स था, और इसके क्रेडिट्स कितने हैं, 2 क्रेडिट्स है, ठीक है। अब कैसे है, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, एन एडिशनल 1 क्रेडिट मे बी अवॉर्डेड इफ यूनिवर्सिटी डीम इट फिट बेस्ड ऑन द एक्चुअल स्टूडेंट एफर्ट। आई बात समझ में, है ना। तो 2 की जगह इसमें 3 भी दिया जा सकता है, अगर आपके कम पढ़ रहे हैं और आपने कॉलेज को प्रॉपरली बता रखा है कि हम ये कोर्स कर रहे हैं, रिटर्न में आपने रजिस्टर कर रखा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कौन से पोर्टल से करेंगे, जो आपकी कॉलेज की ईमेल आईडी है आप उसी से रजिस्टर करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर लगेगा कि हाँ आपने पूरी प्रॉपर मेहनत करी है, तो हो सकता है 1 क्रेडिट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। आगे बात समझ में। और देखो एक क्राइटेरिया ही देखो, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कैसे मिलता है सर्टिफिकेट। अगर आपका स्कोर 90 से ज्यादा है तो इलीट प्लस गोल्ड सर्टिफिकेट मिलता है, 75 से 89 है तो इलीट प्लस सिल्वर मिलता है, और ग्रेटर देन 60 है तो इलीट मिलता है, और 40 से लेके 59 के बीच में है तो आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, ठीक है ना। तो आपको इसमें कोई अलग से आपको मेडल नहीं मिलेगा, बट आपका कंप्लीशन माना जाएगा। और 40 से कम स्कोर रहेगा तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो जो आपने 1000 रुपीज दिए होंगे वो भी आपके रिफंड नहीं होंगे, क्योंकि इसकी फीस कितनी है सर्टिफिकेट की, 1000 रुपीज है, ठीक है। तो अभी मैं इससे रिलेटेड भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अच्छा, एग्जाम हमेशा 2 सेशन में होता है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, चाहे मॉर्निंग लेना चाहे या इवनिंग लेना चाहे, ये आपको डिपेंड करता है, ठीक है। अभी फिलहाल जो सेंटर्स हैं वो जयपुर आते हैं, बट सिंस अभी बहुत कम स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं, इसलिए जयपुर सेंटर आता है। अगर 200 स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं तो हो सकता है कि सेंटर अजमेर में ही आ जाए, क्योंकि अजमेर में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सेंटर है। अगर किसी ने आईआईटी जेई का दिया हो तो आप लोग देने गए होंगे, कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है टीसीएस के, और उनपे वहां पे ये जाके दिया जा सकता है, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट। अंचिता कुछ पूछ रही थी, कैन वी गेट क्रेडिट्स लेस देन 5 फॉर अ सेमेस्टर। यस डेफिनेटली अंचिता, यू कैन गेट क्रेडिट लेस देन 5। उसके लिए आपको कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, ठीक है। आप ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप सेकंड ईयर से ट्राई करना, सेकंड सेमेस्टर से ट्राई करना स्टार्ट कर दो। तो उससे ये होगा कि आपके पास में हर बार 3-3 क्रेडिट का होगा। तो यू हैव 7 सेमेस्टर्स अवेलेबल विथ यू, तो 7 3 21 क्रेडिट्स आपके हर सेमेस्टर में 3-3 का टारगेट करो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अंशिका, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू, ओके, कमिंग बैक टू द पीपीटी, हम लोग जहाँ पे चल रहे थे, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर किसी को ईमेल आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप बलवीर सिंह सर है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कॉलेज वाली ईमेल आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना। वैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की चालू हो सकती है अगर कोविड का सिनारियो बढ़ेगा तो, इसलिए जिस किसी की भी कॉलेज वाली ईमेल आईडी, स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स,
जिस किसी की भी कॉलेज ईमेल आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है तो आप पहले अपने ट्यूटर से बात करें, और अगर आपके पास में ईमेल आईडी ही नहीं है अभी तक, और ईमेल आईडी नहीं है तो ट्यूटर से बात करें, और ईमेल आईडी है और कोई तरह की प्रॉब्लम आ रही है लॉगिन करने में, तो आप बलवीर सर हैं, बलवीर सर से आप सर्वर रूम में जाके मिलो, वहां पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, कोर्स कैसे सर्च करना है। अब कोर्स का सिलेक्शन और कोर्स का एनरोलमेंट। कोर्स के सर्च करने में किसी को प्रॉब्लम, स्वयं पोर्टल पे मैंने आपको एक कोर्स दिखाया है ना। नाउ आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप इस पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं होता है, आप कितने भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन भरनी है, ये इंफॉर्मेशन भरोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ओके, फाइन। अभी मैं ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि अभी मुझे ज्वाइन नहीं करना है कोर्स, है ना, बट यू कैन ट्राई। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी और संजीव सर, और आप लोग किसी भी फैकल्टी से पूछेंगे, दे कैन हेल्प यू, है ना, आपके जो आपको फैकल्टी किसी भी कोर्स को पढ़ा रहे हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस स्ट्रैटेजी, है ना, करना कैसे है ना। ये मैंने आपको बता दिया। असाइनमेंट, है ना, असाइनमेंट्स आएंगे, अनप्रॉक्टर टेस्ट होगा, प्रॉक्टर टेस्ट होगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, है ना, एक जो कोर्स मेरे प्रोफाइल में है ना। तो आप अपने प्रोफाइल को यहाँ से देख सकते हो कि आपने कौन कौन से कोर्सेज, सॉरी माय कोर्सेज, है ना, आप माय कोर्सेज के अंदर जाओगे तो जिन भी कोर्सेज के लिए आप रजिस्टर्ड हो वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, नाउ ये वो कोर्सेज है जो चल रहे हैं। ठीक है, नाउ ये वो कोर्सेज है जो आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, यू कैन सी हियर कि आई एम फैकल्टी एंड स्टिल आई हैव डन सो मेनी कोर्सेज। दिख रहा है आप लोगों को, है ना। सो यू कैन ऑप्ट मेनी, आप कितने भी कर सकते हो, है ना, और स्पेसिफिकली जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस है ना, उसका आप सर्टिफिकेशन एग्जाम भी देने जा सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक कोर्स दिखाता हूँ जिसके अंदर, बिकॉज ये सारे कोर्सेज के सर्टिफिकेट नहीं लिए मैंने, बट व्हाट व्हाई आई हैव ज्वाइंड, बिकॉज टू सी हाउ अदर पीपल आर टीचिंग। मेरे लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फॉर यू ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंट, आप यही सब्जेक्ट आपके बीटेक में भी है ना। व्हेन यू विल कम इन थर्ड सेमेस्टर यू विल फाइंड दिस सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, आपको ये सब्जेक्ट आएगा, है ना। नाउ इस सब्जेक्ट को साथ के साथ में आप ले सकते हो, है ना, और आप क्या कर सकते हो, थर्ड सेमेस्टर में तो पहले क्लासरूम वाला सब्जेक्ट पढ़ लो। ठीक है, और उस समय इसको सिर्फ एनरोल करो। ठीक है, देन जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आ जाओ तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था और आप उसका एग्जाम दे चुके होंगे, तो आपको पूरा पढ़ा हुआ होगा। देन आप नेक्स्ट सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर में आप इसके सर्टिफिकेशन के लिए ज्वाइन करो। देखो अभी केस से बताता हूं मैं तुम्हारे को। सपोज एक स्टूडेंट है जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में है, राइट। सेकेंड सेमेस्टर में आपके ये सब्जेक्ट आता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, नाउ सेकेंड सेमेस्टर में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आपने ज्वाइन कर लिया, इस तरह से आपके वीक बाय वीक आपके पास में आते रहेंगे, है ना, वीक बाय वीक ये लेक्चर्स आएंगे। वीक 0 हो गया, है ना, फिर वीक 1, वीक 2, वीक 3, इस तरह से आपके ये सारे लेक्चर्स आते जाएंगे। ये वीक 0 है, ये वीक 1 है ना, ये वीक 2 है, ये वीक 3 है, ये वीक 4 है, वीक 5 है, वीक 6 है, वीक 7 है, वीक 8 है। ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना, और इसी तरह से आपको 8 वीक्स है तो 8 असाइनमेंट आ गए, है ना। अब 8 असाइनमेंट है तो इसमें से क्या करना है आपको, 8 असाइनमेंट्स है तो देखो इसमें क्या रूल है, ये इसका स्कोरिंग है। 8 असाइनमेंट्स में से आपको 6 असाइनमेंट्स, जो आपके टॉप 6 असाइनमेंट्स होंगे उसके मार्क्स ये आपको इंक्लूड करेगा, किसके लिए, 25% स्कोर के लिए। ठीक है, और 50% क्या होगा, प्रॉक्टर्ड एग्जाम होगा, और 25% अनप्रॉक्टर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, अब एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूं असाइनमेंट कैसे होते हैं। ये असाइनमेंट है ना, ये असाइनमेंट नंबर 6 है। यहाँ पे आपको ये कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है इसलिए देख के डरना मत, जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है और इवन फर्स्ट ईयर भी, अभी डरने की कोई बात नहीं, जब आप लोग ये कोर्स कर लोगे तो आपको बहुत इजीली आने लग जाएगा। ठीक है, नाउ ऐसा सब कुछ दिया होता है, यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम लिखना होता है,
और उस प्रोग्राम को लिख करके आप सबमिट करते हो। अभी यहाँ पे सबमिट बटन नहीं आ रहा है बिकॉज ये प्रोग्राम, ये इसकी एक ड्यू डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, ये 2020 का कोर्स है, ये कोर्स मैंने 2 साल पहले किया था, इसलिए है ना ये अभी है नहीं, है ना। सो ये होता है जब आपका पूरा वीक, ये जो ड्यू डेट होती है, इस ड्यू डेट से पहले ही आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना होता है। अगर आप इसके बाद में सबमिट करते हो तो ये इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, नाउ आफ्टर द ड्यू डेट इसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है, यानी अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपना सीख सकते हो ताकि फाइनल एग्जाम में आप वो गलती नहीं करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, नाउ ये इस तरह से असाइनमेंट है। और लास्ट में आपको देखो ये क्या दिख रहा है, December 5 प्रोग्रामिंग टेस्ट दिख रहा है आपको, ये प्रोग्रामिंग टेस्ट है। ये प्रोग्रामिंग टेस्ट अनप्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन है, यानी ये मैंने घर बैठे दिया है। आपको एक लैपटॉप चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ये प्रोग्रामिंग टेस्ट सिर्फ प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स में आता है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं आता है ना। सो यहाँ पे ये हुआ, ये आपको इस तरह से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको आधे घंटे का टाइम है जिसके अंदर आपको ये प्रोग्राम खुद को लिखना है कि ये प्रोग्राम बना है, और फिर जब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा तो आपको एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन सही होगा तो आपका क्या हो जाएगा, सारे आंसर्स पास हो जाएंगे और इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन है। फाइन, कभी कभी इस तरह से लाइव सेशन भी होते हैं जिसपे जो इंस्ट्रक्टर है, यानी जो IIT कानपुर की फैकल्टी है जिन्होंने या व्हाट आई डोंट रिमेम्बर, फैकल्टी जो भी इस कोर्स को रन करने वाली फैकल्टी है, वो भी कभी लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो इस तरह का सेशन भी होता है जिसमें वो कुछ प्रॉब्लम्स लाइव डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये तो सारी बातें हुई कि करना क्या है और कैसे करना है और क्या है हमारे पास में करने का। असाइनमेंट समझ में आ गया आपको? हर वीक आपके पास में कुछ असाइनमेंट्स रहेंगे। ठीक है, इस वाला जो ये कोर्स है इसमें ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को? इसमें सारे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स है ना। दूसरा कोर्स में दिखाता हूं आपको जिसमें ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स रहेंगे। ये कोर्स को देखते हैं। इस कोर्स में अगर आप ये जैसे वीक देखेंगे, वीक के अंदर ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपको दिख रहे होंगे, ये कैसे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये सब कोर्सेज का अलग अलग रहता है। किसी कोर्स के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे असाइनमेंट में, किसी कोर्स के अंदर आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जिस सेमेस्टर में इस क्रेडिट को टारगेट करना है ना। अब स्ट्रैटेजी समझना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा क्या, आप मेहनत बहुत सारी कर लोगे बट स्ट्रैटेजी सही नहीं होगी तो अचीव नहीं कर पाओगे क्रेडिट। ठीक है, कैसे अचीव करना है आपको, सपोज आप हो अभी सेकेंड सेमेस्टर में, है ना। ये दोनों जो कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, हायर क्लासेस के मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो स्टूडेंट्स इतने कैपेबल हैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कि वो अपने कोर्सेज पहचान सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में आप ये कोर्सेज पढ़ रहे होंगे, है ना, ये वाला कोर्स और अभी इससे पहले जो मैंने कोर्स बताया था आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आपको फैकल्टी, कॉलेज की फैकल्टी ये कोर्स पढ़ा रही है तभी आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन आप कर लोगे तो उससे क्या फायदा होगा, आप जिस टाइम ये एक तो ये एक्स्ट्रा लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही है उसके अलावा आपको ये एक्स्ट्रा लेक्चर्स, यूट्यूब लेक्चर्स हैं ये आपको मिल जाएंगे जिनको आप सुन सकते हो। ठीक है, ये प्रोफेसर अनुपम बासु IIT खड़गपुर से है जिन्होंने ये कोर्स को डिजाइन किया है ना। सो ये आपको कोर्स, ये आपको लेक्चर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। दूसरा क्या बात है कि ये क्विज के जो असाइनमेंट है इसको सॉल्व करने का आपको एक बार का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर में आप हो, आप यही कोर्सेज पढ़ रहे हो, जो कोर्सेज आप पढ़ रहे हो उसी के आपने स्वयं कोर्सेज भी ले लिए। ठीक है, यानी ये कितने क्रेडिट का कोर्स है,
ये 4 क्रेडिट का कोर्स है। अबाउट द कोर्स में आप जाके देख सकते हो ये कितने क्रेडिट का कोर्स है। ये 3 क्रेडिट का कोर्स है ना। तो क्या किया आपने, 3 क्रेडिट का ये कोर्स आपने ले लिया, ठीक है। अब 3 क्रेडिट ये कोर्स आप लोगे तो सही, बट इसका आप एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो, ठीक है। क्योंकि आप ये वो कोर्स पढ़ रहे हो जिस कोर्स को आप उसी सेमेस्टर में क्लास में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको इस कोर्स के लिए फिलहाल एग्जाम देने नहीं जाना है, पर आपको इसको वीक बाय वीक हर क्वेश्चन को, हर असाइनमेंट को सॉल्व करना है। आगे बात समझ में? क्योंकि मोस्टली कोर्सेज हर ईयर रिपीट होते हैं, हर सेमेस्टर रिपीट होते हैं मोस्टली सारे कोर्सेज, ठीक है। तो अब आप आ गए थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। आपने ये पिछले साल कोर्स पूरा देख लिया है, क्या क्या हुआ था इसमें, कैसे कैसे इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने की कोशिश भी कर ली और आपकी क्लास की फैकल्टी से भी आपने पूछ लिया और आपने मिलकर के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये काम किया आपने सेकेंड सेमेस्टर में। अभी आप एग्जाम देने नहीं गए हो इसका, ठीक है। अब आप आ गए हो थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आप 5 अलग कोर्सेज पढ़ रहे होंगे, 6 अलग कोर्सेज पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप ये दोनों कोर्सेज को वापस से एनरोल करोगे, ठीक है। और इस बार इन दोनों के आप एग्जामिनेशन देने जाओगे। तो आपको कितने क्रेडिट्स मिल गए? 6 क्रेडिट मिल जाएंगे। 3 इसके हो गए, 2 उसके हो गए, 5 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। आगे बात समझ में है ना। और थर्ड सेमेस्टर के जो कोर्सेज है, थर्ड सेमेस्टर में जैसे मैं बताऊं तुम्हें, एक कोर्स आता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई, इन 3 में ये कोर्स रहेगा डेटा स्ट्रक्चर नाम से, ठीक है। इसको अपन सर्च कर लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आ गया डेटा स्ट्रक्चर। अब थर्ड सेमेस्टर में जब आप हो तो आपने 2 कोर्स तो कौन से लिए, जो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिए हैं, उनका तो आप एग्जाम देने जाओगे। और क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इस कोर्स को एनरोल करके रखोगे, बट इसका एग्जाम देने नहीं जाओगे। आर यू गेटिंग द स्ट्रेटेजी दैट आई एम टेलिंग यू? किसी को नहीं समझ में आई तो पूछो एक बार, बिकॉज पूछोगे तो ही मुझे एक्सप्लेनेशन का दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। अब देखो, ये 4 क्रेडिट का कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो ये कोर्स आप कब करोगे? जब आप थर्ड सेमेस्टर में हो। थर्ड सेमेस्टर में आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ भी रहे हो, है ना, और आप साथ का साथ में इस कोर्स को ऑप्ट कर लोगे, ठीक है। बट आप इसका सर्टिफिकेशन एग्जाम का पेमेंट नहीं करोगे, यानी आप सर्टिफिकेट के लिए टारगेट इस कोर्स को नहीं कर रहे हो। आप थर्ड सेमेस्टर में कौन से कोर्सेज को टारगेट करोगे? जो आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ लिया, ठीक है। ऐसा ही सेकेंड सेमेस्टर में भी आप लोग प्रमोट हो जाओगे, तो कोई ना कोई फर्स्ट सेमेस्टर का ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है और आप उसमें अच्छे से सर्टिफिकेट निकाल लोगे, ठीक है। तो आप उस कोर्स का स्वयं पे अभी सेकेंड सेमेस्टर में रजिस्टर हो जाना, ठीक है, और आप उसका सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन लेके जाना, ठीक है। तो देखो, जो अगर मैं स्ट्रैटेजी को समराइज करूं ना, तो देखो कैसे है। 5 क्रेडिट्स पर सेमेस्टर आपको लेना है ना। तो आप क्या करो, कॉम्बिनेशन बनाओ किस चीज का, एक तो प्रीवियस सेमेस्टर के कोर्सेज और एडवांस कोर्सेज जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ लिए हैं, आप 3 क्रेडिट तो उसके कोशिश करो, ठीक है। 2 या 3 क्रेडिट आप कोशिश करो जो जनरल कोर्सेज है, यानी दूसरी स्ट्रीम के कोर्सेज है, और जो सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज है, ये भी अभी मैं दिखाता हूं कौन से होते हैं, ठीक है। ऐसे की कोशिश करो। 3 तो वो लो आप जो थोड़ा हार्ड पड़ता है कोर्स, यानी जो आपके सिलेबस का एडवांस वर्जन है, तो प्रीवियस सेमेस्टर का, लेकिन कौन सा, करंट सेमेस्टर के कोर्स पे सर्टिफिकेट मत करो। और इसके अलावा रजिस्टर करो कौन से, करंट सेमेस्टर के वो कोर्स जिनको आप अगले सेमेस्टर में टारगेट करोगे। आगे बात समझ में? चाहो तो इस चीज का स्नैपशॉट ले लो, ये आपकी स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए आप लोगों को। ये मेरी सजेस्टिव स्ट्रैटेजी है कि आप लोग इस तरह से करोगे तो आप लोग आराम से थर्ड ईयर तक आपके 20 क्रेडिट्स पूरे हो जाएंगे। क्योंकि फाइनल ईयर के अंदर आपका प्लेसमेंट वगैरह के एग्जाम्स रहते हैं, आपके पास में दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आप हायर स्टडी की तैयारी कर रहे होते हो, तो आप बहुत बिजी रहोगे, है ना, फाइनल ईयर के अंदर। तो इसलिए फाइनल ईयर तक पहुंचने से पहले, यानी इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर राइट नाउ, दिस स्ट्रेटेजी इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। आप आराम से फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते ऑनर्स का डिग्री अचीव कर लोगे, ठीक है। ऑल्दो ये कोई मैंडेटरी नहीं है,
ऐसा नहीं करना है इसकी वजह से आप अपनी परसेंटेज डाउन कर लो, ठीक है। ये कभी भी नहीं करना है कि आप अपने प्राइमरी कोर्सेज को पढ़ना बंद कर दो और आप इन कोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देने लग जाओ, है ना। इसीलिए मैं आपको हर बार कह रहा हूं कि प्रीवियस सेमेस्टर के वो कोर्सेज जिनको आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, आप उन कोर्सेज को अगले सेमेस्टर में लो। Am I clear about this strategy? Yes, sir. ओके, तो स्ट्रैटेजी एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूं, एक बार इसको देख लो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो स्ट्रैटेजी क्या कह रहा हूं कि अगर आप अभी फिलहाल सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हो, ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर में आप सपोज 6 कोर्सेज पढ़ रहे हो, 6 में से आपको 2 ऐसे लगते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आई एम वेरी गुड इन इट, ठीक है। तो बट देयर आर चांसेस कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद में हो, ठीक है। तो उसी सेमेस्टर में आप एग्जाम देने जाओगे तो शायद आपके 1000 रुपीज वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो क्या करना है कि इस सेमेस्टर में मुझे जो 2 कोर्सेज अच्छे लगे हैं, जिन पे मैं कॉन्फिडेंट हूं, उनको मुझे अगले सेमेस्टर के लिए, है ना, रेडी करना है सर्टिफिकेट के लिए। और इस बार सिर्फ रजिस्टर करना है और उसके कंटेंट देखने हैं और उसका असेसमेंट देखना है, उसके असाइनमेंट देखने हैं, सारे असाइनमेंट देखने और करने, ठीक है। इतना तो मानते हो, इतना तो तुम्हें खुद पे विश्वास होगा कि अगर एक ही कोर्स को 2 सेमेस्टर में लगातार अगर हम पढ़ लें तो हम उस कोर्स के मास्टर बन जाते हैं। इतना तो सब लोग अपने आप पे भरोसा करते होंगे, ठीक है। तो एक बार तो आपको जब करना है जब वो क्लास में वैसे ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इस स्वयं कोर्स पे रजिस्टर होना है उसी कोर्स के लिए, और उसको सिर्फ गो थ्रू करना है। आपको सिर्फ उसमें क्या कंटेंट आते हैं, क्या असाइनमेंट आते हैं, क्या असेसमेंट आते हैं, वो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता पड़ गया कि अगले सेमेस्टर इसमें क्या क्या आने वाला है, मानते हो ये बात, अगले सेमेस्टर के लिए आप रेडी हो। अब जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचे तो आप 6 नए कोर्स पढ़ रहे हो, लेकिन आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस सेमेस्टर के कोर्सेज लोगे, ठीक है। और जो थर्ड सेमेस्टर के कोर्सेज है उनको भी आप रजिस्टर करोगे, लेकिन एग्जाम नहीं दोगे उनका, ठीक है। उनको सिर्फ आप ज्वाइन करोगे और उनका कंटेंट देखोगे, ताकि उनको अपन 4th सेमेस्टर में टारगेट कर सके, ठीक है। यानी जिस भी सेमेस्टर में आप हो अभी, उसके कोर्सेज तो आपको सिर्फ देखने हैं और प्रीवियस सेमेस्टर के कोर्सेज का एग्जाम देने जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी भी डाउट है? ओके, जो लोग स्पेसिफिकली सेशन चाहते थे उन लोगों का डाउट क्लियर हुआ? सर, आपने कहा कि जो हमारे चल रहे हैं और जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उस पे हम एक्स्ट्रा क्लासेस इसमें कर सकते हैं और उसका एग्जाम नहीं देना होगा, तो हम उस सब्जेक्ट्स में क्रेडिट कैसे अर्न करेंगे? अगले सेमेस्टर में। अभी तो उस सेमेस्टर में हम एग्जाम छोड़ देंगे उस हाँ, टॉपिक अभी कौन से ईयर में हो तुम? सर अभी फर्स्ट सेम। अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हो, है ना। अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हो ना। तो सपोज अभी तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, कुछ फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ केमिस्ट्री का किसी का पढ़ रहे हो, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं ना। सर फिजिक्स। ठीक है, अभी फिजिक्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, एंड आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इसका सर्टिफिकेट इसी सेमेस्टर में निकाल लोगे, ठीक है। यानी इसी सेमेस्टर में आप स्वयं में भी एनरोल हो जाओ और जाकर के उसका एग्जाम भी दे के आ जाओ। लेकिन जनरली ऐसा नहीं हो पाता है ना। मतलब मेरा एक्सपीरियंस और मैं जो स्टूडेंट्स को देखता हूँ उनको मुझे देख करके ऐसा लगता है कि आप पहले इस सेमेस्टर पूरा फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है। अब जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जब पहुंचोगे तो आप क्योंकि फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे तो आप फिजिक्स में कॉन्फिडेंट हो, राइट। अब इस बार सिर्फ आप फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ फिजिक्स का सब्जेक्ट को एनरोल करो, ज्वाइन करो। अभी जो मैंने बताया था ना, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, ये जो ज्वाइन है ना, सिर्फ ज्वाइन करना है, एग्जामिनेशन की फीस नहीं देनी है। एग्जामिनेशन की फीस देना इज नॉट इक्विवेलेंट टू ज्वाइन। ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ज्वाइन करने पे आप सारे वीक के क्वेश्चंस देख सकते हो, सारा मटेरियल देख सकते हो, सारे लेक्चर सुन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको एक एग्जाम जयपुर जान के देके आना पड़ेगा, या फिर आपको
एक सेंटर पे जाके दे के आना पड़ेगा। वो एग्जाम आप बिना 1000 रुपीज दिए नहीं दे सकते हो, वो एग्जाम के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। लेकिन वो काम आप कब करोगे, सेकंड सेमेस्टर में करोगे, तब आप इस फिजिक्स के कोर्स को वापस से रजिस्टर करोगे। हर साल हर सेमेस्टर ये सेम ही कोर्सेज बार बार रिपीट होते हैं। आ रही बात समझ में? स्वयं के ऊपर 70 to 80% कोर्सेज हर बार रिपीट होते हैं, सिर्फ 10-20% कोर्सेज नए आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? तो 40-80% कोर्सेज तो हर बार चल रहे हैं। तो फिजिक्स इस बार आपने सिर्फ देखा और समझा, और अगले सेमेस्टर में उसका एग्जाम देने गए, ठीक है। असाइनमेंट भी ऑलमोस्ट वही वाले आएंगे, है ना, या उनसे रिलेटेड आएंगे अगले सेमेस्टर में। तो क्योंकि आप पिछले सेमेस्टर में ही वो असाइनमेंट सारे देख चुके होंगे, तो आप क्या करोगे, बहुत इजीली आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर उन असाइनमेंट्स को कर लोगे। मिल रहा है? फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है? मतलब नहीं आ रहा समझ में? यू आर फ्री टू आस्क, पूछो, सेशन इसीलिए। सर हाँ सर जैसे अभी हमने अभी सर्टिफिकेट का दिया, लेकिन हमें सर्टिफिकेट मतलब मिला नहीं कोर्स से, जैसे स्कोर सही नहीं रहा या कुछ नहीं रहा, तो उसका हम दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं लाइक सर्टिफिकेट के लिए? एनी टाइम, लेकिन 1000 रुपीज हर बार लगेगी। और सर जैसे उसके लिए भी दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा उस कोर्स में, इस पोर्टल हाँ पे? बिल्कुल, वापस से रजिस्टर और करना सर पड़ेगा। तो दीपिका देखो सुनो, यही वो स्ट्रेटेजी काम आती है। तुमने जो एग्जांपल दिया ना, ये एग्जांपल दूसरों को मेरे को कोट करने दो। जैसे सपोज एक कोर्स दीपिका ने किया, अब मान लो सपोज उसका रजिस्टर उसी सेमेस्टर में वो पहले पढ़ भी रही थी और उसी सेमेस्टर में उसने स्वयं भी ले लिया, तो मानते हो ये चीज डिफिकल्ट होगी हमारे लिए, क्योंकि उसी सेमेस्टर में हम वो कोर्स को नया भी पढ़ रहे हैं और स्वयं में एडवांस वाला एग्जाम भी हमें देने जाना है, तो वो काम मुश्किल होगा। तो आपको क्या करना था, जैसे दीपिका को ये करना चाहिए था कि किसी वजह से ये चांस हो सकते हैं कि हम लोग उस सेमेस्टर में नहीं कर पाए, तो पहले रजिस्ट्रेशन आप एग्जामिनेशन वाला मत करो, सिर्फ उस कोर्स को ज्वाइन करो। ज्वाइन करके पहले उसको देख लो आराम से, पूरा एक सेमेस्टर उसको पूरा देख लिया आपने, उसमें क्या क्या कंटेंट आने वाले हैं, क्या क्या असाइनमेंट आएंगे, क्या क्या उसमें चीजें आएंगी, वो सब आपने देख लिया। अब हार्डली कोई 10-20% कंटेंट अगले सेमेस्टर में बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगले सेमेस्टर तक आप उस सब्जेक्ट के मास्टर हो चुके होंगे। तो अब आप अगले सेमेस्टर में उसकी फीस दो, उस कोर्स को वापस से ज्वाइन करो, वापस से एनरोल करो और वापस से उसका सर्टिफिकेट का फीस दो, और फिर आप अगले सेमेस्टर में जाके उसका एग्जाम देते हो, ठीक है। और उस सेमेस्टर में जो आप पढ़ रहे हो वो 2 नए सब्जेक्ट और एनरोल करके रखो और उसको सिर्फ देखो, उनको एग्जाम देने नहीं जाना। तो नए सब्जेक्ट का सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, नए सब्जेक्ट को सिर्फ देखना है, उसका एग्जाम देने नहीं जाना है। और एग्जाम देने किसका जाना है, जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर के है, समझे? पूछो और ये कुछ पूछना। यस। बट सर जैसे मतलब हमें उस कोर्स में दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा क्या? मतलब ऐसा हो सकता है ना, इस हाँ कोर्स ही हट जाए? हाँ, रिपीट हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है ना। सर? बट ऐसा जनरली नहीं होता है ना। एक कोर्स 4-5 साल रहता है, बिकॉज वो चाहते हैं कि सब लोग पढ़ ले। ओके। बट सर जैसे अभी मैंने सर्च किया तो यहाँ पे लाइक बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग और जैसे आप सी बता रहे हैं फंडामेंटल्स, वो तो इधर शो ही नहीं हो रहे अभी, लाइक क्यों लिटिल क्यों नहीं? एडवांस। उनका नाम बदल जाता है। देखो, अभी देखो दिखाता हूँ मैं, स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को, या यस है सर। ना? अभी देखो, सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन आ गए, तो आपको थोड़ा सा कोर्सेज को है ना ढूंढना पड़ेगा। कैसे? एक तो कोर्स क्रेडिट यहाँ से देख लो। एक तो ये जरूर ध्यान रखना, कोर्स क्रेडिट यस रखना है ना, यानी वही कोर्सेज करने हैं जिनके क्रेडिट्स हैं। ये बात ध्यान रखना। ये बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोर्स तो कर लेते हैं, फिर बाद में पता पड़ता है ये क्रेडिट कोर्स था ही नहीं, ठीक है। तो आपको इसको कोर्स क्रेडिट को यस रखना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग थ्रू C++, आर्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, है ना, ये सब फर्स्ट ईयर के। ये देखो ये कोर्स दिखा तुम्हें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आई बात यस सर। समझ में? ये फंडामेंटल का कोर्स है।
नाम बदल जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 साल चल गया। अब जैसे इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो लोग आईटी ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो लोग ये भी ऑप्ट करना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये क्या होगा कि आप लोग जैसे जैसे सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर में आप हो ना, उस सेमेस्टर के सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करो पहले कि इसमें कौन कौन से कोर्स है, और सबको रजिस्टर कर लो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 10, 12, 15 कितने भी कोर्स रजिस्टर कर सकते हो फ्री में, ठीक है। और एग्जाम के लिए रजिस्टर किसके अंदर करना है? दो रजिस्ट्रेशन है एक्चुअली, एक है एनरोलमेंट और एक है एग्जाम का रजिस्ट्रेशन। एनरोलमेंट मैं कह रहा हूं कि अनलिमिटेड है, आप करंट सेमेस्टर के भी एनरोलमेंट कर लो और प्रीवियस सेमेस्टर के भी एनरोलमेंट कर लो, ठीक है। और एग्जाम लेकिन सिर्फ प्रीवियस सेमेस्टर का देने जाओ या उन सब्जेक्ट का देने जाओ जिस पे आपको कॉन्फिडेंस। समझ गए? अब देखो इसके क्रेडिट कितने हैं, 4 क्रेडिट है। अब ये कोर्स तो ऐसा है जो सभी स्टूडेंट्स को थर्ड सेमेस्टर में करना ही चाहिए। थर्ड सेमेस्टर में जितने लोग हैं वो सभी लोग इस कोर्स को रजिस्टर कर लो, और क्योंकि 4 क्रेडिट्स आपको सीधे सीधे मिलेंगे। और ये कोर्स के अंदर सिंपली आपकी ब्रांच से रिलेटेड ही बातें हैं, क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है, ये सब इतना बेसिक चीज है कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। और आपको इसका सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है, और आप एग्जामिनेशन में 40% तो बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ क्या है, हाँ एक ये प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि कभी कभार कॉलेज एग्जाम्स के साथ में क्लैश करता है ना। तो ये डेट जो होती है ना, ये मोस्टली पहले से डिक्लेयर्ड होती है। कौन सी डेट? इनके एग्जामिनेशन की डेट। अभी कोविड की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना। ऊपर नीचे कौन हो रहा है? सेमेस्टर एग्जाम भी तुम्हारे ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल 6-8 महीने हो सकता है कि डेट्स में आपस में दिक्कत आए, बट ऐसा नहीं होता है। आपको शुरू में वो डेट पता होती है और आपको कॉलेज का कैलेंडर भी पता होता है, यानी आप जिस सेमेस्टर में एंटर हो रहे हो वो आपको पहले से पता होता है। और रजिस्ट्रेशन अभी शुरू में नहीं कराना होता है। जैसे 24 अप्रैल आपको डेट बताई है, तो आज थोड़ी ना आपसे कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा है, ये होगा फेब्रवरी में। फेब्रवरी तक आपको अपने एग्जामिनेशन की डेट शीट पता होगी। अभी कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि बार बार लॉकडाउन हो जाता है, बार बार कुछ है ना रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है, तो इस वजह से एग्जामिनेशन नहीं हो पाते, तो सरक जाता है। अभी जैसे ऑड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन तुम्हारे आगे बढ़ गए, है ना। तो अभी आपको ये सब इतना नहीं सोचना है, एग्जामिनेशन का और इनका आपस में क्लैश मोस्टली नहीं होता है। और होता है तो फिर उस बार तो ऑब्वियसली आपको सेमेस्टर एग्जाम ही देना है। इन केस कभी हो भी जाता है तो सेमेस्टर एग्जाम ही देना है, फिर ये देने नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में रिफंड नहीं होता है, ये पहले बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। हाँ अब एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन एनपीटेल लेनी है या स्वयं करनी है? देखो जो स्वयं पे कोर्सेज चल रहे हैं ना, ये सब एनपीटेल के ही हैं, है ना। एनपीटेल ये पोर्टल देख लो, ये एनपीटेल का पोर्टल है, ये आईआईटी मद्रास का पोर्टल है। पहले सब कुछ एनपीटेल के थ्रू चलता था, ठीक है। लेकिन अभी कैसे है कि सर्टिफिकेशन वाला जो जितना भी काम है वो सारा कहाँ होता है ना, वो सारा कहाँ होता है? स्वयं पे। तो आपको स्वयं पे जाके ही चेक करना है सब कुछ, ठीक है। ये जो आ रहा है ना, जनवरी से अप्रैल एग्जाम रजिस्ट्रेशन इज ओपन, तो जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो कोर्सेज अपने आप आपको लेके जाएंगे, आपके पास में ईमेल आएगा। ईमेल जैसे ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन ओपन बता रहा है ना। तो अब देखो इसका कब, एनपीटेल और स्वयं ऑलमोस्ट सेम है, इनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक और खास बात है, आप एनपीटेल कोर्सेज के अंदर जो हेल्प है वो आप ऐसे भी ले सकते हो। जो ये इसमें से कुछ कोर्सेज है ना, स्वयं के कुछ कोर्सेज एनपीटेल के अंदर पहले से बहुत पुराने हैं। तो जैसे आप गए ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर गए, अब इसके अंदर जैसे ये वाला कोर्स है, जैसे ये इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग है ना, ये काफी पुराना कोर्स है, तो इसको आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको एनरोल करने की कोशिश करोगे ना, ये आपको स्वयं पोर्टल की तरफ ही लेके जाएगा, है ना। ये जब आप है ना ऑनलाइन कोर्सेज डॉट एनपीटेल, तो इसको आप ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन करने में ये देखो आपको कहाँ लेके आ गया, ये स्वयं पोर्टल पे लेके आ गया। तो कोर्सेज आपके स्वयं पोर्टल से ही होंगे। एनपीटेल सिर्फ लिस्टिंग है ना। एनपीटेल पे सारे लिस्टेड है, ये बहुत सारी लिस्टिंग है, जो लिस्टिंग यहाँ पे है वही यहाँ पे है। बट स्वयं वो पोर्टल है जो आपके सारे सर्टिफिकेट्स को मैनेज रखता है, ठीक है। जितने भी आप सर्टिफिकेट्स लोगे वो आपके सारे यहाँ पे दिख जाएंगे माय कोर्सेज के अंदर, ओके। एनी अदर डाउट?
तो अभी जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है ना, अच्छा एक और तुम्हें बताना था, सॉफ्ट स्किल्स वाले कोर्सेस है ना, राइट। इसमें कैटेगरी जो है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आप बाहर आ जाओ, ठीक है, और उसके लिए आप कर सकते हो, एक तो आप ले सकते हो ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, है ना। अब इसके अंदर आपको ये अलग तरह के कोर्सेज है ना। ये कैसे है, ये इंजीनियरिंग कोर्सेज नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक कोर्स मैं तुम्हारे को सर्च करके बताता हूँ, सॉफ्ट स्किल्स। अब अगर हम लोग सर्च करते हैं सॉफ्ट स्किल्स, दिख रहा है एडवांसिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी, इसका एनरोलमेंट ओपन है। क्या ये कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, चेक करना है कि इसके क्रेडिट है कि नहीं। इसके क्रेडिट कितने हैं? 2। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी में क्या बताया तुम्हें कि 2 क्रेडिट आप किसके कोशिश करो, सॉफ्ट स्किल्स या अदर दूसरी चीजों के कोशिश करो, और 3 क्रेडिट कोशिश करो किसके, आपके सब्जेक्ट कोर्सेज के, ठीक है। नाउ आपने ये सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स ले लिया। अब देखो इस सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या है, ये वो सब चीजें हैं जो आपको फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते आपको प्लेसमेंट के लिए कैपेबल बनाएगी। और ये चीजें ऐसी है जो हमें वैसे भी आनी चाहिए ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो एक नॉर्मल चीज है जो किसी की भी होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वाई ये ऐसा कोर्स है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर सकते हो। तो आपने सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में इसको ज्वाइन कर लिया, अब आप सिर्फ इसको देखो और इसके असाइनमेंट्स करो, है ना। आपको ये काम नहीं करना है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। ये काम आपको कब करना है, जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में आपको ये समझ में आ गया कि ये कोर्स तो आप इजीली क्रैक कर लोगे, है ना। ये कोर्स का आप सीधी इजीली 40% मार्क्स लेके आ जाओगे। तब आपको क्या करना है, सेकेंड सेमेस्टर में इस कोर्स को वापस से एनरोल करना है, ठीक है। और वापस से एनरोल करके, वापस से ज्वाइन करके क्या करना है, अब इस बार आपको सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या करना है, ये एग्जाम देने जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अभी कोविड की वजह से आपका सेमेस्टर थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो आप, जो मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि आप लोग एक तो ये कोर्स जो सॉफ्ट स्किल्स वाला कोर्स है, और इसी तरह के दूसरे कोर्सेज जो जनरल है, वो आप लोग अभी से एनरोल कर लो, और इनको सुनो, इनकी बातें सुनो, और इनके असाइनमेंट करो, ठीक है। और जो लोग 12th के अंदर सी प्रोग्रामिंग जानते हैं या प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, तो आप लोग प्रोग्रामिंग का कोर्स भी अभी से एनरोल कर लो। और प्रोग्रामिंग का कोर्स चाहो तो सभी लोग एनरोल कर लो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, है ना। उसमें ये आपको कुछ कोर्सेज दिख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग का कोर्स है, आर्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और एक अभी मैंने बताया था फंडामेंटल्स का कोर्स था, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी। मैंने जो मेरा सर्टिफिकेट दिखाया था वो इस कोर्स का है। ये कोर्स थोड़ा हार्ड है, ये मैं सबको नहीं कहूंगा। देखिए आर्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और है ना, ये पाइथन वाला कोर्स है, ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो कोर्सेज है जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी मैं फर्स्ट ईयर में किसी को भी ये नहीं कह रहा कि आप जाके सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। तभी आपको सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। 2 कोर्सेज कोई से भी अच्छे से टारगेट कर लो और उनको सिर्फ सुनो और उनके असाइनमेंट करो, ठीक है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे, जब एक्चुअल में ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, तब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर कॉन्फिडेंस आ गया होगा तो आप दे देना, नहीं तो आप थर्ड सेमेस्टर का वेट करो, ठीक है। सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन उन्हीं का करना है जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। नहीं तो 1000 रुपए वेस्ट हो जाएंगे, पहले बता देता हूँ। आ गई बात समझ में? और कॉलेज भी रियम्बर्स अगर करता है, अगर जो टेक्यूब स्कीम है उसके अंडर अगर कॉलेज रियम्बर्स करेगा, तो वो तभी करेगा जब आप सर्टिफिकेट अर्न करोगे। अगर आपने 1000 रुपीज पे किए और उस एग्जाम में आप क्लियर नहीं हुए, यानी सर्टिफिकेट 40% मार्क्स से ज्यादा आपके नहीं आए, तो कॉलेज भी रियम्बर्समेंट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन है गीतिका का, टोटल क्रेडिट्स कितने लेने हैं? 20 लेने हैं आपको, है ना। टोटल क्रेडिट्स 20 लेने हैं और 5 ईच सेमेस्टर का टारगेट करना है, ठीक है, सेमेस्टर। इज इट फाइन? और तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट बच रहा है?
जीटी का लेट ज्वाइन किया क्या? पूरी रामायण खत्म हो गई एंड यू आर आस्किंग कि राम जी कौन थे? आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, राइट? अभी मैं वापस पूरा रिपीट नहीं कर सकता कि इन क्रेडिट से क्या होगा. दिस क्रेडिट इज फॉर योर ऑनर्स डिग्री, है ना? सो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, तो वो आप लोग आराम से, है ना, देख सकते हो. अभी डाउट्स बताओ मुझे, है ना? अदर जो बातें मैंने बताई है उन पे डाउट्स बताओ. कैसे करना है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, उनसे रिलेटेड किसी को डाउट है तो वो आप लोग मुझे बताओ. ठीक है, ये दोनों आपने समझ ही लिए. टोटल 166 क्रेडिट्स आपके, है ना, नॉर्मल बीटेक के लिए है. और बीटेक ऑनर्स अगर आपको करनी है तो 20 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स आपको किससे लेने हैं? स्वयं पोर्टल पे, मूक्स से लेने हैं. स्वयं पोर्टल में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये सबसे ऑर्गेनाइज्ड पोर्टल है ना. इस पे सबसे आपको अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं और आपके सिलेबस से रिलेवेंट कोर्सेज मिल रहे हैं. तो आप इस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उन कोर्सेज को यहाँ पे ज्वाइन कर लो, उनको सिर्फ देखो और अगले सेमेस्टर में वापस से ज्वाइन करो और वापस से उनका एग्जामिनेशन देने जाओ. ठीक है, तो इस तरह से आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो. हाँ बोलो झलक. सर मैं पूछ रही थी कि मैंने देखा है कि बीटेक की अगर डिग्री है, जैसे कि जैसे कुछ हो के जैसे बैक वगैरह भी आ जाए, तो नेक्स्ट 4 इयर्स मतलब बीटेक के 4 इयर्स के बाद भी वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, देन उनको 8 इयर्स बाद में भी मतलब वो डिग्री ले होता सकते है, हैं. बट बिल्कुल. अगर जैसे कुछ क्रेडिट्स अगर रह जाए, मतलब जैसे किसी को ऑनर्स लेनी हो और जिसके कुछ क्रेडिट रह जाए, तो फिर जैसे बीटेक अगर कंप्लीट हो गई देन उसके बाद में हम वो क्रेडिट सबमिट करा के देन बीटेक ऑनर्स मिलती है क्या, या मिल कौन से ईयर सकती में हो अभी? कौन से ईयर में हो? है? मैं तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हूँ सर. अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो ना. ऑल्दो देखो, इस तरफ दिमाग लगाना मत, है ना. अपन को तो बीटेक 4 में कंप्लीट करनी है, नहीं तो वैसे भी इतने बीटेक है कि आप ये सोचोगे कि दुनिया में करने क्या आए थे, है ना. तो पहली बात तो ये ऑल्टरनेट बनाना ही नहीं है अपना. दूसरी बात है कि अभी इससे रिलेटेड नॉर्म्स नहीं आए हैं क्योंकि ये नई चीज़ है. तो अभी इससे रिलेटेड कोई नॉर्म्स अवेलेबल नहीं है कि आप आफ्टर योर बीटेक के 4 इयर्स के बाद भी आप अपने स्वयं कोर्स करके और आप वहाँ पे उसको एंटर करा सकते हो क्या. अभी तक नहीं है ना. बट क्योंकि जब लोग फाइनल ईयर तक पहुंचेंगे फिर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी. अभी तक कोई फाइनल ईयर में पहुंचा ही नहीं है ना जिसके साथ में ये चीज हो रही है ना. सो जब फाइनल ईयर तक पहुंचेंगे फिर ये प्रॉब्लम आएगी तो फिर यूनिवर्सिटी अलग अलग सोल्यूशन देगी. ठीक है, लेकिन सिंस यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उनको कोई ऑप्शन नहीं सोचना है, आपको तो कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन कम होगी क्योंकि आप लोगों के एडमिशन के टाइम में ये नॉर्म्स हैं. थर्ड ईयर फाइनल ईयर के साथ में अपन ऐसा मान सकते हैं कि उनमें से किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी तो शायद यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर करेगी और उसका कुछ ऑल्टरनेट बताएगी. ओके, हाँ और कोई पूछ रहा था अभी कुछ? फाइन. सो विद दिस, हाँ ओके ओके. अगर सर्टिफिकेशन अप्लाई करते हैं बट नहीं मिलता तो अगेन अप्लाई कर सकते हैं. तो अगेन अप्लाई करने पर उस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है? नहीं, कुछ मेंशन नहीं होता है. एवरी कोर्स इज फ्रेश, है ना. आप फ्रेश एनरोल कर रहे हो तो वो फ्रेश ही रहेगा. ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है जैसे आपकी रेगुलर कोर्सेज में अगर बैक आ जाती है तो जब आप बैक के लिए एग्जाम देते हो, मतलब फेल हो जाते हैं किसी वजह से और फिर एग्जाम देते हैं, तो नई जो मार्कशीट होती है उसमें मेंशन नहीं होता है. प्रीवियस जो मार्कशीट होती है उसमें मेंशन होता है कि आपके बैक थी. ठीक है, सेम ऐसा इधर नहीं चलता है. इधर कैसे है कि स्वयं में आपको कैसे है कि आप फर्स्ट एक बार आपने एनरोल किया, आप किसी वजह से उसको नहीं कर पाए, यानी आप एग्जाम में आपके मार्क्स कम आए 40 से. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगली बार एनरोल करोगे तो आपको जज किया जाएगा. ठीक है, आपका फ्रेश एनरोलमेंट है और आपको फ्रेशली ही उसका सर्टिफिकेशन देगा. उस बार आपने 40 ले लिए तो जैसा मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया वैसा का वैसा फ्रेश सर्टिफिकेट मिलेगा. उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि आपने इसको 3 अटेम्प्ट में पास किया या 4 अटेम्प्ट में पास किया, ऐसा कुछ नहीं. ओके, और कोई? ओके, तो आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन. आप लोगों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया इसके लिए, है ना. सो
ठीक है, तो तुम अगर पर्सनल ईमेल आईडी से एनरोल्ड हो तो कोशिश करो कि कॉलेज की आईडी से एनरोल हो जाओ, अगर अभी एनरोल किया है तो, है ना। अभी अगर एनरोल किया है तो ट्राई कि कॉलेज की आईडी से एनरोल हो जाओ, है ना अंशिता। ओके, बट अभी ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है ना, ऐसा नॉर्म्स नहीं है कि आप पर्सनल ईमेल आईडी से ज्वाइन नहीं कर सकते, कर सकते हो, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट टू टेक पार्ट इन लोकल चैप्टर ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज की आईडी से करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट के पास में आ जाएगी, तो वो आपको जो फाइनल ईयर के अंदर मार्क्स दिलाना है ना, वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, बिकॉज आपको हर सेमेस्टर में इन्फॉर्म करना है ना। आपने देखी होगी, मैंने नॉर्म्स दिखाई थी अभी तुम्हें, हर सेमेस्टर में इन्फॉर्म करना है आपको कि आप कौन से कोर्सेज कर रहे हो, है ना, कौन से कोर्सेज के सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हो, ठीक है। हाँ, so what does it mean by 50%? 50%, ओके। अदर ब्रांच के मैंने आपको दिखाया ना, अदर ब्रांच के आप अपनी ब्रांच को छोड़ करके आप कोई दूसरी ब्रांच अगर लेट ज्वाइन किया तो रिकॉर्डिंग देखना, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, है ना। और अदर ब्रांच का मतलब है कि अदर फील्ड भी हो सकता है ना। अदर फील्ड मतलब अभी जैसे मैंने सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स दिखाया, दिस विल बी कंसिडर्ड इन अदर फील्ड, ठीक है। तो अदर का आपका अदर ब्रांच का आपका मतलब है कि आप अगर कंप्यूटर के हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो, मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो। जनरली ऐसा नहीं करते हैं अपन, है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है ब्रांचेस, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स के ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी का भी ले सकती है, ठीक है। तो ऐसा सब चल सकता है, बट मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स अगर कंप्यूटर वाले लेंगे तो वो डिफिकल्ट पड़ेंगे, ठीक है ना, बिकॉज आपका वो फील्ड नहीं है। सो वो जनरल कोर्सेज को टारगेट करो, जैसे सॉफ्ट स्किल्स हो गए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अब फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लो। बट आपको बहुत सारे कोर्सेज, आप इसको कोर्स को, है ना, आप स्वयं पोर्टल को एक्सप्लोर करो। अगर आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों को एक्चुअली यूजफुल बनाना है, आज के सेशन का एक्चुअली कोई फ्रूटफुल बनाना है, तो आप सभी लोग अगले 2-3 दिन के अंदर फ्री हो, क्योंकि आप लोगों के जस्ट मिड टर्म ओवर हुए हैं या फिर अभी सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, ठीक है। और ऑड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं अभी फिलहाल, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुए हैं। तो आप लोग क्या करो, आप लोग स्वयं पोर्टल को पूरा एनालाइज करो, और इसलिए भी करना है बिकॉज 15 जनवरी कुछ कोर्सेज का लास्ट डेट है ना। तो उसके बाद में आप इस सेमेस्टर में एनरोल नहीं कर पाओगे। कुछ कोर्सेज का 20 के बाद में है, कुछ लोग कोर्सेज का 15 के आसपास है। तो यही वीक है जिसमें आप बहुत सारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने की कोई लिमिट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, खूब सारे कोर्सेज एनरोल करो, उनको देखो समझो, फिर जो टारगेट करोगे उन कोर्सेज को आप एग्जामिनेशन के लिए उनका पेमेंट करो, और वो भी अगले सेमेस्टर। इस सेमेस्टर अभी सिर्फ देखना है आपको, ठीक है। और पिछले सेमेस्टर का, यानी फर्स्ट ईयर के आगे के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पिछले सेमेस्टर के जो कोर्सेज पसंद है उनको आप इस सेमेस्टर के लिए सर्टिफिकेट के लिए टारगेट करो, ठीक है। और कुछ? तो आई होप सेशन लंबा हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी हम लोग इतनी बातें करेंगे और इतना देर स्पेंड करेंगे। इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 hour। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप जब भी हम लोग मिलेंगे तो तुम लोग यही बताओगे मुझे कि सर हमने आपने बताया था तो हमने ये कोर्सेज कर लिए, एंड आफ्टर फाइनल ईयर मैनी ऑफ यू विल शो मी योर ऑनर्स मार्कशीट। ओके, तो बीटेक तो सबको मिलेगी ही मिलेगी, बट आई होप कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स ऑनर्स करके भी निकले, तो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। तो कभी भी मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, आई एम अवेलेबल इन हिमालय भवन, टॉप फ्लोर पे है, कंप्यूटर लैब्स के पास में मेरा रूम है, एंड आई एम अप्रोचेबल। ओके, तो थैंक यू फॉर हियरिंग मी, बाय बाय। Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।